Hello students, I am back with my session number 4 of chapter number 1, Air and Water. In today's session I am going to explain you about water, filtration, sedimentation and evaporation. But before I start explaining today's session, let me revise you all the things about last sessions. Last session में हमने क्या किया था? Vocabulary words, meanings about air and atmosphere, right? So फटाफट से vocabulary words revise कर लेते हैं. Number 1 nitrogen, number 2 helium, number 3 atmosphere, number 4 impurities, number 5 sedimentation, number 6 decantation, number 7 evaporation, number 8 distillation, number 9 chlorination, number 10 screening, number 11 soluble, number 12 ozone, number 13 composition, number 14 spacecrafts, and number 15 pond. Now meanings. Number 1 filtration, the process of filtering a liquid or gas. Number 2 sedimentation, the process of depositing sediments. Number 3 filter, a device containing paper, sand, chemicals and so on that a liquid or gas is passed through in order to remove any materials that are not wanted. Number 4 chlorination, the process of adding chlorine in water to kill germs is called chlorination. Number 5 water filters, water filters used to remove harmful bacteria. Clear? Now let's start air. Kids, what I explained here in air, मतलब कि air contains many gases, right? Including nitrogen, carbon dioxide, oxygen, dust particles, water vapor, and smoke. These are the things it is in air. ये सारी चीजें जो होती है वो air में mix up होती है. Now composition of air. I explained what is composition of air, right? मतलब कि there are so many different proportions are given there, right? मतलब कि कितने proportion में कितना क्या होता है, right? तो सबसे ज्यादा ग्रीन कलर में सर्कल था, राइट? मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% कौन सा गैस है? नाइट्रोजन. कौन सा गैस? नाइट्रोजन. 21% कौन सा है? ऑक्सीजन. 0.03% हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है. और लास्ट में बचते हैं वाटर वेपर, हाइड्रोजन, एर्गॉन, हीलियम. These type of gases are like 0.01% are present in our atmosphere. Clear? Now properties of air, मतलब it occupies space, it exerts pressure and it has weight. So these are the properties of air. Clear? Then after I explain you about atmosphere. मैंने आपको क्या explain किया था about atmosphere? There are 5 layers in atmosphere, right? Number 1 troposphere, number 2 stratosphere, number 3 mesosphere, number 4 thermosphere and number 5 exosphere, right? These are the 5 layers which are present in our atmosphere. Now they have different types of their characteristics are there. जैसे कि troposphere है, changes in weather occur in this layer, right? मतलब कि कोई भी weather में changes आता है तो इसी layer में हमें दिखता है, right? फिर है स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब कि वो उसके पास क्या है? ओजोन लेयर कैरी करता है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज. क्लियर? फिर है मेसोस्फीयर, मतलब कि वो मेसोस्फीयर है स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स फ्रॉम द आउटर सरफेस. इट प्रिवेंट्स देम टू रीच देम अर्थ, मतलब कि वो अर्थ में उसको आने से बचाता है. फिर आता है फोर्थ लेयर, मतलब थर्मोस्फीयर, मतलब spacecraft और orbit are present in this layer, right? Fourth layer में spacecraft और orbit दिखाई देते हैं. फिर आता है number 5 exosphere, मतलब this is the fifth layer of the atmosphere. The outer space begins beyond this layer, मतलब outer space मतलब space के outer का area होता है वो fifth layer में होता है. Clear? फिर था हमने क्या पढ़ा था? Importance of atmosphere, right? There are 5 importance of atmosphere. Number 1, it keeps our planet warm, मतलब कि वो हमारे planet को warm रखता है. Number 2, it provides us oxygen to breathe. वो हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है ब्रीथ करने के लिए. फिर थर्ड पॉइंट, the atmosphere contains carbon dioxide that is useful for photosynthesis. कि वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट्स को प्रोवाइड करता है. It helps them for photosynthesis process, right?
फोर्थ है द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, मतलब कि वो ओजोन लेयर जो है वो हमें हार्मफुल यूवी रेज से भी प्रोटेक्शन देता है, राइट? सो दिस इज द मेन थिंग। फिर लास्ट द चेंजेस इन वेदर टेक प्लेस इन द एटमॉस्फेयर, जो कोई भी चीज अगर वेदर में चेंजेस होती है तो वो मोस्टली किस में दिखाई देती है? ये सारे के सारे लेयर्स में। क्लियर किड्स? नाउ लेट्स बिगिन टुडेस सेशन। Today's first topic is water. This is quite interesting, huh kids? Listen it very carefully. About 70% of the earth's surface is covered with water. मतलब हमारे अर्थ का जो 70% होती है ना लैंड, मतलब कि सोचो कि अर्थ है उनमें से 70% थिंग मतलब कि 70% वाटर से कवर्ड है। किससे कवर्ड है? 70% वाटर से। सोचो कि सिर्फ 35% में ही हमारी लैंड है। कितनी परसेंट में? सिर्फ 30% में। 70% में पूरा का पूरा वाटर है, बाकी की 30% में ही लैंड है। उसी 30% में वी आर सर्वाइविंग, राइट? दिस वाटर इज प्रेजेंट इन रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एंड आइस कैप्स। मतलब कि किड्स ये सारे का सारा वाटर किस में कवर्ड है? या तो कहीं बहुत सारे रिवर्स है, बहुत सारे लेक्स भी है, बहुत सारी सीज भी है, बहुत सारे ओशंस भी है और बहुत सारे आइस कैप्स भी है। आइस कैप्स मतलब कि ऐसे ऐसे माउंटेन्स जो आइस से पूरे के पूरे मतलब कि वो ट्रैप्ड है, आइस ने उसको कवर कर दिया है। इट इज फुल ऑफ कवर्ड विद आइस। उसका टेम्परेचर, उसका एटमॉस्फेयर इतना ठंडा होता है ना कि वो मेल्ट कभी होते ही नहीं। कोई कोई सीजन में मेल्ट होता है तो इतने नहीं मेल्ट होते हैं, राइट? तो उसकी कूल सीजन की वजह से वो आइस कैप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी प्लेसेस है वो भी आइस कैप्स है कि कोई भी प्लेस है वहाँ बहुत सारी बर्फ है तो वी आर नॉट एबल टू लिव देयर, राइट? तो आइस कैप से भी मतलब इन सारी चीजों से 70% लैंड है वो वाटर से कवर्ड है। किससे कवर्ड है किड्स? वाटर से कवर्ड है 70% लैंड। The water present in the seas and ocean is not fit for drinking as it contains high amount of salt. Kids, have you tried to drink salt water? आपने कभी ट्राई किया है सॉल्ट वाटर पीने का? हम पी ही नहीं सकते बिकॉज इतना सॉल्ट होता है, हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है और हम उसको पी ही नहीं सकते। तो सोचो ये ओशन और सी का वाटर तो टोटली सॉल्टी वाटर होता है। कैसा होता है किड्स? salty water. We cannot able to drink that water, right? वो हम पानी पी सकते नहीं है। तो ये ओशंस का और सी का पानी तो अनयूजेबल है बिकॉज हम उसको पानी पीने के लिए बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर की हम पानी ले सके तो कौन सी सोर्स से ले सके? तो कि रेन वाटर फिल्स रिवर्स। रेन वाटर किसको फिल करते हैं? तो कि रिवर्स को फिल करते हैं, पॉन्ड्स को फिल करते हैं, लेक्स को फिल करते हैं एंड वेल्स, कुआं। ये सारी की सारी चीजें इसे रेन वाटर फिल करता है। दीज आर आवर मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। मेन सोर्सेज ऑफ वाटर की मतलब कि हमें पानी पीने के लिए चाहिए तो हम इसी सोर्सेज से ले सकते हैं, ना कि ओशन से भी नहीं ले सकते, सी से भी नहीं ले सकते। दीज आर द थिंग्स फ्रॉम दैट वी कैन यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग। मतलब कि कभी ओशन का पानी हम यूज के लिए भी नहीं ले सकते। सॉल्टी वाटर तो वी कैन नॉट यूज, राइट? क्योंकि ये जो रेन वाटर होता है ये सारी इन्हीं चीजों को फिल कर देता है। क्लियर? क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है तो वो अनयूजेबल है तो वो तो पड़ा ही रहेगा। तो वो तो एक तो सॉल्टी है, उसमें से पानी रेन हो रहा है तो वो तो मिक्सअप ही हो जाएगा सॉल्ट वाटर के साथ, वो भी सॉल्टी हो जाएगा तो वी कैन नॉट यूज। बट ये रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स, ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती है और वापस से रेनी सीजन में फिल हो जाती है तो उसको हम अपने ड्रिंकिंग वाटर के यूज के लिए ले सकते हैं। क्लियर? नाउ वाटर सपोर्ट्स लाइफ। मतलब हम सबको पता है वाटर ही एक चीज है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? लाइफ को सपोर्ट करता है। कि सोचो आप 2-3 घंटे पानी पीने बिना भी नहीं रह सकते हो तो वाटर के बिना तो इट इज लाइक हम जी ही नहीं पाएंगे, राइट? तो वाटर सपोर्ट्स लाइफ मतलब वाटर की वजह से ही लाइफ सपोर्टेड है। क्लियर? वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स and
ह्यूमन बींग्स, मतलब सारे के सारे लिविंग थिंग्स के लिए पानी बहुत ही जरूरी है। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, वो नहीं जिंदा रह पाएंगे पानी पिए बिना। पॉइंट नंबर 1, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। मतलब हमें पानी तो चाहिए, बट कौन कौन सी चीजों के लिए? एक तो पानी ड्रिंकिंग मतलब पीने के लिए चाहिए, बाथिंग मतलब नहाने के लिए भी पानी चाहिए, कुकिंग मतलब कोई भी चीज को हमें कुक करना है, रसोई मतलब रसोई करने के लिए भी चाहिए ना हम लोगों को, तो कुकिंग के लिए भी चाहिए। और सारे के सारे वाटर में वॉशिंग करने के लिए भी चाहिए, क्लोथ्स को वॉशिंग करने के लिए चाहिए, यूटेंसिल्स को वॉशिंग करने के लिए चाहिए, अगर हमारे पास व्हीकल्स है उसको वॉश करते हैं, हमारे घर को क्लीन रखते हैं। तो ये सारी की सारी चीजों वाटर के बिना it is not possible to do, right? So water is the main reason behind our living things life, right? Point number 2, we also need water for agriculture, industries and transport. मतलब ये सारी की सारी चीजें के लिए तो हमें वाटर तो चाहिए, बट दूसरी कौन सी चीजों के लिए चाहिए? जैसे कि एग्रीकल्चर में तो पानी की बहुत नीड होती है, मतलब कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वी नीड वाटर, राइट? तो अगर वाटर ही हम नहीं उसको सप्लाई करेंगे तो हम प्लांट्स ग्रो होंगे? प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे तो ये हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाली इनहेल एक्सहेल वाली प्रोसेस है वो नहीं होगी तो हमें कोई भी फूड नहीं मिलेगा मतलब कि कोई भी प्रोसेस नहीं होगी तो इवेपोरेशन प्रोसेस भी नहीं होगी। तो मतलब ये सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती है, तो हमें फूड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हम लाइफ को सपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर वी लिविंग थिंग्स, राइट? नाउ पॉइंट नंबर 3, प्लांट्स आल्सो नीड वाटर टू मेक देयर फूड एंड ग्रो। प्लांट्स को भी अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए वाटर चाहिए, राइट? फूड को प्रिपेयर करने के लिए भी वाटर चाहिए, और प्रॉपर वे में प्लांट्स को ग्रो होने के लिए भी वाटर की नीड होती है। इसके बिना इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो आवर प्लांट्स हेल्दी, राइट? प्लांट्स आई थिंक ग्रो ही नहीं होंगे, हेल्दी तो बाद में, बट ग्रो ही नहीं होंगे। क्लियर किड्स? सो वाटर सपोर्ट्स लाइफ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इम्प्योरिटीज इन वाटर। अभी ये सोर्सेस तो है पानी के, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, वेल्स है, लेक्स है, पर किड्स उसमें इम्प्योरिटीज भी होती है। इम्प्योरिटीज मतलब कचरा। हमें हमारे पास जो क्लीन वाटर आता है वो एक फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को पास करने के बाद हमारे पास आता है, बट ये जो इम्प्योरिटीज तो होती है वाटर में, तो वो डिफरेंट टाइप्स की इम्प्योरिटीज होती है। एक तो सॉल्युबल होती है और एक इनसॉल्युबल होती है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। ना इम्प्योरिटीज इन वाटर्स में कैसा होता है? वाटर फ्रॉम रिवर्स, ponds and lakes is not safe for drinking because it may have dirt and germs in it. ये सारे के सारे वाटर है तो भी हम उसका वाटर पानी को मतलब पानी पीने के लिए यूज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट सेफ फॉर अस क्योंकि उस वाटर में डर्ट भी होता है, जर्म्स भी होते हैं। अगर वो डर्ट और जर्म्स हम पी लेंगे तो हमारे बॉडी में बहुत ही साइड इफेक्ट आ जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे, हमें डिसीज लग जाएगी, स्टमक में स्टोन्स आ जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है कि ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम जर्म्स, मड, डर्ट एंड एनी अदर टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि उसको जर्म्स भी निकालने होंगे, उसके अंदर का मड भी निकालना होता है, उसके अंदर का डर्ट भी निकालना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज को हमें पहले सेपरेट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम उस पानी को अपने पीने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर किड्स? जर्म्स तो पता है ना कि जर्म्स क्या होते हैं। फिर मड मतलब कि कोई भी सॉइल होती है वो एक सूखा हो जाता है, उसके मड बन जाता है, माटी कही આપણે मड થઈ જાય। फिर डर्ट होता है, मतलब कि कोई भी डर्ट होता है, कोई भी पार्टिकल्स होते हैं, ट्विग, स्ट्रॉ, मतलब कुछ भी कचरा हो वो डर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? सो दीस आर द थिंग्स वी नीड टू सेपरेट फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। The things that make water unsafe for drinking are called impurities.
मतलब जो पानी गंदा होता है, जो पानी पीने के लायक नहीं होता है, उनमें जो कचरा आ जाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इम्प्योरिटीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्प्योरिटीज। ये जर्म्स है, मड है, डर्ट है, ये सारी की सारी चीजें जब पानी में रहती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्योरिटीज। जो क्या करती है, जो हमें पानी पीने देती नहीं है, क्योंकि इम्प्योरिटीज के साथ हम पानी पी जाएंगे तो हमें डिसीज हो जाएगी, राइट? ये कचरा जो कुछ भी होता है पानी में उसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्योरिटीज। These can be of two types, soluble and insoluble. Impurities दो टाइप्स की होती है, एक soluble होती है और insoluble होती है। Soluble जो होती है ना वो पानी में डाइल्यूट हो जाती है और जो insoluble होती है वो पानी में डाइल्यूट होती नहीं है। जैसे कि मैंने बोला मड और ये सारी की सारी चीजें पानी में डाइल्यूट हो जाती है, पानी को गंदा तो कर देती है बट वो डाइल्यूट हो जाती है। और ये insoluble में क्या होता है कि ट्विग्स है, कोई भी बड़े बड़े स्टोन्स है, कोई भी कचरा है जो पानी में इजीली सॉल्युबल नहीं होता, उस मतलब कि गળી ન જાય તો એને શું કહેવાય? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल શું કહેવાય किड्स? इनसॉल्युबल। और ऐसी चीज जो पानी में गળી જાય છે उसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबल। क्लियर? The impurities that do not dissolve in water such as sand are called insoluble impurities। मैंने बोला ना कि सैंड जैसे कि कोई भी ऐसी चीज जो होती है जो वाटर में इनसॉल्युबल है तो उसको क्या बोलेंगे? इनसॉल्युबल impurities। The impurities that dissolve in the water such as salt are called soluble impurities। कि आप घर पे ट्राई करो, अभी पानी का ग्लास लोगे, उसमें हाफ स्पून सॉल्ट डालो, हाफ स्पून शुगर डालो, तो उसको हिलाते रहना 2-3 मिनट। उसके बाद सॉल्ट और शुगर नहीं दिखेंगे, वो पानी में डाइल्यूट हो गए होंगे। क्या हो गए होंगे? डाइल्यूट और मिक्सअप हो गए होंगे, उगड़ी जा सकते, तो आपको वो इनविजिबल हो जाएंगे। मतलब ये सारी की सारी चीजें सॉल्युबल है। क्या है किड्स? ये सारी की सारी चीजें पानी में सॉल्युबल है। क्लियर? नाउ रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उसको कैसे निकालते हैं हम लोग? आपको पता है सॉल्युबल को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इनसॉल्युबल को तो हम निकाल सकते हैं ना। तो इनसॉल्युबल को हम कैसे निकालेंगे? इनसॉल्युबल impurities such as dust, mud and sand can be removed by using two different methods, filtration and sedimentation। मतलब कि ये सारी की सारी इनसॉल्युबल impurities है ना, तो उसको हम दो मेथड से उसको निकाल सकते हैं। कौन सी मेथड से? दो मेथड से, एक तो फिल्ट्रेशन वाली और दूसरी सेडिमेंटेशन वाली। मतलब कि इट हेल्प्स टू रिमूव इनसॉल्युबल impurities फ्रॉम द वाटर, राइट? तो देखो फिल्ट्रेशन से हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? Filtration is the method in which insoluble impurities can be removed by passing the impure water through a filter। कैसे? हम लोगों ने लास्ट ईयर एक एक्सपेरिमेंट किया था, इफ यू रिमेम्बर, कि हमने एक बकेट में पानी लिया, उसमें सैंड, सॉइल, ट्विग्स, लीव्स ये सब कुछ डाल दिया था। फिर दूसरे में हमने क्या किया था? दूसरी बकेट ली, उसके ऊपर एक फिल्टर क्लॉथ रखा था व्हाइट कलर का, एक और दूसरी में रखा था थोड़ा सा हैंकरचीफ जैसा रखा था, राइट? मतलब को फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर वो जो गंदा कचरा था उसको हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया, उस फिल्टर पेपर के ऊपर, फिल्टर क्लॉथ के ऊपर डालना स्टार्ट कर दिया, तो पानी नीचे चला जाता गया और ऊपर सारी की सारी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी वो किस में आ गई? वो फिल्टर क्लॉथ में आ गई, राइट? वो आपको विजिबल होगा। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ओके? तो आप घर पे भी ट्राई करना। तो ये सारी की सारी फिल्ट्रेशन की मेथड से इजीली ये सब कुछ क्लीन हो सकता है। नाउ दूसरी मेथड है सेडिमेंटेशन। कौन सी मेथड है दूसरी? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं? तो क्या सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन लिक्विड सेटल डाउन एट द बॉटम। उसमें क्या होता है कि उसमें सारी की सारी सेडिमेंटेशन इम्प्योरिटीज जो होती है वो नीचे बैठ जाती है। पानी जो होता है ना उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, तो उसको डिस्टर्ब किए बिना हम उस वाटर को 4-5 घंटे तक रख देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो सारे के सारे इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाती है। बट उसको डिस्टर्ब किए बिना, उसको टच नहीं करना है, हिलाना नहीं है,
अगर ये होगा तो वो वापस से हिल के ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज ऊपर आ जाएंगी, तो उसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। अगर कोई भी गंदा पानी है उसमें से हमें क्लीन वाटर चाहिए तो उसको 4-5 आवर्स तक उसको टच किए बिना हमें एक प्लेस पर उसको रख देना है। क्लियर? The impurities that settle down are called sediments। मतलब सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस है, राइट? तो अभी जो एक कचरा नीचे बैठ जाता है पानी के नीचे, उसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स। सारे के सारे सेडिमेंट्स से वो कैसे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएगा। सारा का सारा कचरा, डर्ट, मड, ये सब कुछ इकट्ठा होके नीचे सेटल हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे किड्स? सेडिमेंट्स, राइट? The process of removing the clear water after the sediment settle down is called decantation। फिर क्या होगा कि आप किड्स घर पे ट्राई करोगे, कोई भी कांच का बाउल है, कांच का ग्लास है, उसमें ट्राई करना, तो आपको रिजल्ट विजिबल होंगे कि नीचे कचरा बैठ जाएगा और ऊपर क्लीन हो जाएगा। तो नीचे कचरा बैठ रहा है उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ऊपर का जो प्योर वाटर हम लेने वाले एक ग्लास में से दूसरे ग्लास में शिफ्ट करेंगे, राइट, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिकेंटेशन। क्या बोलेंगे किड्स? डिकेंटेशन। सेडिमेंट्स, डिकेंटेशन। सेडिमेंट्स जो नीचे बैठता है और डिकेंटेशन मतलब कि प्योर वाटर को हम एक ग्लास में से दूसरे ग्लास में सेपरेट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। क्या बोलेंगे किड्स? डिकेंटेशन। आई होप सो यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंट्स एंड डिकेंटेशन। क्लियर? नाउ लास्ट वन, रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को कैसे निकालना है? नाउ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए भी 2 मेथड्स है। कितनी मेथड है किड्स? 2 मेथड्स है। रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज इज मोर डिफिकल्ट देन रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। मतलब सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को निकालना थोड़ा सा इजी रहता है, बट सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को अलग करना इट इज टू मच डिफिकल्ट। एक तो ऑलरेडी पानी में डाइल्यूट हो चुका होता है, मतलब टोटली मिक्सअप हो गया होता है, तो उसको कैसे निकाले, इट इज वेरी इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, मोस्ट सॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड यूजिंग 2 प्रोसेसेस, इवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन। वो जो है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करने के लिए वी नीड 2 प्रोसेस, एक तो इवापोरेशन प्रोसेस एंड दूसरी डिस्टिलेशन प्रोसेस। इन्हीं 2 प्रोसेस से वी कैन सेपरेट, वी कैन रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ये 2 प्रोसेस हम करेंगे, उसी से हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं, बाकी हम नहीं अलग कर सकते हैं। Clear? I hope so you understand. Now kids, in next session, session number 5, I am going to explain you about these 2 methods, evaporation method और distillation with the help of diagram। मैं आपको डायग्राम के साथ ये दोनों प्रोसेस एग्जैक्ट एक्सप्लेन करूंगी। ओके, उसके साथ साथ भी मैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर का कैसे प्यूरिफिकेशन होता है वो भी एक्सप्लेन करूंगी। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट होम, मतलब कि हमारे घर पे कैसे प्यूरिफाई होता है वाटर, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके अलावा बॉइलिंग, क्लोरिनेशन एंड वाटर फिल्टर्स, ये सारी की सारी चीजें भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो किड्स, इन दिस सेशन व्हाट आई एक्सप्लेन यू अबाउट वाटर, अबाउट फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड इवापोरेशन, राइट? इवापोरेशन एकदम डेप्थ में मैं आपको कौन सा सेशन में समझाऊंगी, नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगी। ओके किड्स, सो आई हैव शेयर्ड अ पीडीएफ विद यू। मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर किया ना, ट्राई टू डू इट बाय योर ओन सेल्फ। ओके, आंसर्स देना अपने आप से। ये सेशन नहीं समझ में आ रहा है, ओपन योर बुक एंड रीड इट ट्वाइस टाइम्स। ओके, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके किड्स, सो टिल नेक्स्ट सेशन किड्स, बाय।